کہ کیا 4 سال ان کی غیرت سوئی ہوئی تھی جب وہ اقتدار کے مزے لے رہے تھے اور بڑی بے شرمی سے سعودی عربیہ سمیت ہر ایک کی دھمکی بھی برداشت کر رہے تھے. پیٹرول 60 روپے سے 160 کا ہو گیا لیکن عمران خان کی غیرت نہیں جاگی. قرضہ 25,000 سے 50,000 ارب ہو گیا لیکن عمران خان کی غیرت نہیں جاگی. ڈالر 105 سے 187 کا ہو گیا, غیرت پھر بھی سوتی رہی. حکومت جاتے ہی ان کی غیرت جاگ گئی, لیکن ان کی حکومت جانے کے بعد جو تباہی چھوڑ دی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. 2-3 بڑی اہم خبریں ہیں جو کل سے اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں. ایک تو کل رات کو لیٹ پہنچے جناب شہباز شریف صاحب واپس. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کو راستے میں ابو دھابی رکنا تھا فاتحہ وغیرہ کے لیے, جو وہاں کے رولر کا انتقال ہوا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد وہ پہنچ تو گئے یہاں پہ, لیکن یہ 4-5 دن جو وہاں پہ رہے ہیں سارے, یہ کافی سارے مشکلات پہ رہے اور پی ایم ایل این کے اندر کافی نا اتفاقی پائی جا رہی ہے. اب میاں شہباز شریف جو ہے وہ کسی صورت قیمتیں بڑھانا نہیں چاہ رہے تھے پیٹرول کی اور بجلی کی, اور شاہد خاقان عباسی اور دیگر لوگوں کا, مفتاح اسماعیل کا یہ خیال تھا کہ یہ بڑھائے بغیر ہونا کچھ نہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت ریٹرن گارنٹیز دے چکی ہے آئی ایم ایف کو. اب وہ جو مرضی کہیں, وہ جھوٹ بولیں, غلط بیانی کریں, وہ تو خیر کر ہی رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ریٹرن گارنٹیز دے گئے تو یہ قیمتیں بڑھانی پڑیں گی. تو اب 2 قسم کی کانسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ اسلام آباد سے آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فوری طور پہ انٹرم گورنمنٹ بنا دی جائے, اور ایک نام جو سوشل میڈیا پہ فلوٹ کر رہا ہے, جیسے مجھے ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, وہ ہمایوں اختر خان کا ہے کہ ان کو انٹرم پرائم منسٹر بنایا جائے. انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ لمبی چلے اور وہی جو ہے نئے چیف کا بھی اعلان کرے گی اور وہی جو ہے قیمتوں میں اضافہ کر دے گی, تو جو آنے والے لوگ ہیں, الیکشنز لڑنے والے لوگ ہیں, ان کو وہ پرابلم نہیں ہوگی اور یہ مصیبت پی ٹی آئی کے ساتھ ہی دفن ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ انتخابی اصلاحات کیسے کرے گی. انتخابی اصلاحات کرنا ضروری ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہے پارلیمنٹ میں, تو پہلے ایک لیڈر آف دی اپوزیشن کریٹ کریں, اور جس دن لیڈر آف دی اپوزیشن کریٹ ہو گیا, آپ سمجھ لیں کہ انتخابی اصلاحات ہو رہی ہیں اور وہی انٹرم گورنمنٹ بھی بنانے کے لیے یوز ہوگا. اب ایک اور سلوشن جو پی ایم ایل این کے اپنے لوگ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب اس کے بہت خلاف ہیں, وہ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں, شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ آ جائیں وزیر اعظم بن کے اور اپنی نئی کابینہ بنائیں, اور اس میں اتحادی تو اسی طرح ان کے ساتھ شامل ہوں گے بہرحال, اور یہ جو ہے کڑوا گھونٹ پئیں قیمتیں بڑھانے کا, اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب اور ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اگلا الیکشن نہ لڑیں, تاکہ ان کی جو اس میں یہاں پہ چاند ماری ہونی ہے ان کے اوپر, وہ کسی طرح اس سے بچ جائیں. اور حکومت کے پاس اس وقت جو راستے ہیں وہ بڑا انتہائی ایک معاشی چیلنجز کا سامنا ہے, اور اس سے بھی زیادہ مشکل یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو اتنے قلیل وقت میں درست سمت میں کس طرح سے کیا جائے, تقریباً ناممکن ہے. ابھی یہ سب کچھ چل رہا ہے تو ایک اور چیلنج وہ جو ہے وہ پھٹ کے سر پہ آ گیا, وہ ہے شیریں مزاری کا. ڈاکٹر شیریں مزاری نے اپنے اوپر ایک آپ سمجھیں کہ ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ کسی طرح انہوں نے احمد قریشی جو پی ٹی وی کے اینکر ہیں, اور بس ان کے ساتھ منہ ماری کرنی ہے, لیکن اس منہ ماری میں وہ آئی ایس پی آر کو, جی ایچ کیو کو, ہر ایک کو جو ہے وہ رگڑا مارنے پہ تلی ہوئی ہیں. آج میں نے ان کی 2-3 متواتر ٹویٹس دیکھی ہیں, تو شیریں مزاری صاحبہ کی وہ کہتی ہیں کہ جی مت یہ کرو, اور وہ سمجھتی ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے کہنے پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ہمارے سینے میں بڑے راز ہیں, آہستہ آہستہ ہم یہ راز نکالیں گے اور یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. تو مس مزاری آپ ایک دفعہ یہ کٹی یا کٹا جو بھی ہے اس کو پلیز کھول دیں, اس قوم کو مزید آپ اپنا جو ہے نا یہ ذہنی بیمار مت کریں. آدھوں کو آپ نے ذہنی بیمار کر دیا ہے, جو آپ کی جھوٹ پہ, آپ کے سچ پہ, آپ کے جھوٹے وعدوں پہ اور باتوں پہ یقین کریں, اور باقی آدھوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کدھر جائیں, کیونکہ جس قسم کی آپ اکانومی وغیرہ چھوڑ گئے ہیں نا اس ملک کے لیے, انہوں نے اس ملک کا بخیو دھیڑ دیا, اور سری لنکا سے ہم صرف 2 ہفتے دور کھڑے. اور یہ مہنگائی کا طوفان ہے, یہ ہر حکومت کو ساتھ بہا کے لے کے جانے کے لیے تیار ہے, کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے مہنگائی کی وجہ سے عمران خان کو رد کیا, وہ کسی صورت یہ سمجھنے کا تیار نہیں کہ 4 ہفتے کی حکومت کچھ کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں, جبکہ عمران خان کی حکومت کو دھمکی کام آ گئی ہے, انہیں مفت میں ایک ایڈیشنل سیکیورٹی مل گئی ہے. وہ شخص جو رائیونڈ محل پہ سیکیورٹی پہ تنقید کرتے نہیں تھکتا تھا, آج خود بار بار اور زیادہ سیکیورٹی مانگ رہا ہے, اور اس کے لیے اب اس کی جان کو بھی خطرہ ہو گیا.
वजारत दाखिला के अहकामात की रोशनी में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया। इमरान खान के बनी गाला हाउस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और FC के 94 एहलकार 94 एहलकार तैनात कर दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस के 22 जबकि FC के 72 एहलकार शामिल हैं और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरफ से 36, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के 6 एहलकार को भी इनकी मुतल्लिका हुकूमतों की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के लिए अब तैनात किया गया, क्योंकि इनकी उधर तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और सिक्योरिटी के लिए वहाँ से बंदे इस्लामाबाद अब भेज दिए गए हैं। SMS सिक्योरिटी कंपनी के 26 और अस्करी सिक्योरिटी कंपनी के 9 एहलकार भी बनी गाला हाउस की सिक्योरिटी पे अब मामूर हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बाहर मूवमेंट के दौरान इस्लामाबाद पुलिस की 4 गाड़ियाँ और 23 एहलकार जबकि रेंजर्स की 1 गाड़ी और 5 एहलकार उनके साथ हर वक्त मौजूद होते हैं। वज़ारत दाखिला के ज़ेर निगरान थ्रेट असेसमेंट कमेटी जो है वो इमरान खान की सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामलात का मुसलसल जायज़ा भी ले रही है और वज़ारत दाखिला के मुताबिक गुज़िश्ता चंद रोज़ से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अवामी इज्तिमात में अपनी जान को मुमकिन खतरात से मुतल्लिक खदशे का इजहार कर रहे हैं। बतौर साबिक वज़ीर आज़म उनकी कौमी जिम्मेदारी है कि जान को लाहक मुमकिन खतरात, साजिश और दीगर मामलात से वज़ारत दाखिला और मुतल्लिका इदारों को आगाह करें। अब वज़ारत दाखिला जो है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से हासिल शुदा मालूमात और शवाहिद की रोशनी में मज़ीद इक़दाम करेगी। अब एक और मसला हो गया, अब वो बनी गाला में वो कहते हैं कि जी हमारे घर में नौकरों को खाना नहीं दिया जाता, हमारे घर में गार्ड्स को और इतने गार्ड्स को हम खाना नहीं देंगे, हमें गार्ड्स चाहिए लेकिन उनका चाय पानी खाना वो अलग जो है वो पुलिस और रेंजर्स जो हैं उनका बार बार बंदोबस्त करेंगे कि वो रहेंगे भी, फिर गाड़ियाँ आएंगी उन लोगों के लिए खाने भी लेके के बाहर। मरियम नवाज़ ने उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए राना सनाउल्लाह को मुखातिब करके कहा है कि राना साहब इमरान खान से कत्ल की साजिश के वीडियो सबूत लिए बगैर इसको छोड़ना मत ताकि इसके नए शोशे और झूठ को एक्सपोज किया जाए। सिक्योरिटी दें लेकिन कौम के मुजरिम और सबसे बड़े फितने को इसकी औकात से बाहर मत करें। 4 साल में अवाम के पैसे पे प्रोटोकॉल की जो लत लग गई है वही मांग रहा है। बहरहाल इमरान खान अगर ये सिक्योरिटी खुद मांग लेते तो बेहतर था। अब अगर वो सिक्योरिटी थ्रेट से भी आगाह नहीं करेंगे तो हुकूमत उनकी हिफाजत के लिए सिर्फ हवा में तीर ही चला सकती है, उसका फ़ायदा नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। बहरहाल अब हम ये कह सकते हैं इमरान खान भी उन हुक्मरानों में शामिल हो गए जो बहैसियत साबिक वज़ीर आज़म सैकड़ों एहलकारों की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल लेंगे और अब शायद उनको समझ आ जाए कि हर बात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं, क्योंकि जो खदशात इन्हें हैं वो इनके मुखालिफिन को भी हो सकते हैं, क्योंकि वो तो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म थे। बहरहाल एक एक करके चीज़ें खुद इमरान खान के सामने आ रही कि उन्होंने माजी में जो तनकीद अपने मुखालिफिन पे की उनमें से बेशतर खुद इमरान खान को करनी पड़ी, चाहे हेलीकॉप्टर में बनी गाला जाना हो या डॉलर की कदर कीमत बढ़ने पे हुक्मरानों को करप्ट साबित करना हो। बहरहाल अब तो इमरान खान ने अपनी पिच ही चेंज कर ली है, क्योंकि पुरानी पिच पे खेलना अब इनके लिए मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि उनकी अपनी 4 साल कारकर्दगी जो है उसने इनकी पिच में मुतअद्दिद गड्ढे खोद दिए। अब इमरान खान गैरत का कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन मेरा उनसे एक सवाल है कि क्या 4 साल उनकी गैरत सोई हुई थी जब वो इक़्तिदार के मज़े ले रहे थे और बड़ी बेशर्मी से सऊदी अरेबिया समेत हर एक की धमकी भी बर्दाश्त कर रहे थे। आप जुल्म देखें कि पेट्रोल 60 रुपए से 160 का हो गया लेकिन इमरान खान की गैरत नहीं जागी। रोटी 7 से 15 रुपए की होगी, इमरान खान की गैरत नहीं जागी। कर्जा 25,000 से 50,000 अरब हो गया लेकिन इमरान खान की गैरत नहीं जागी। डॉलर 105 से 187 का हो गया लेकिन इमरान खान की गैरत नहीं जागी। चीनी 55 रुपए से 110 रुपए की होगी, इमरान खान की गैरत नहीं जागी। घी 170 से 500 का हो गया लेकिन इमरान खान की गैरत नहीं जागी। आटा 35 से 75 का हो गया लेकिन इमरान खान की गैरत नहीं जागी। सोना 50,000 से 1.25 लाख का हो गया, इमरान खान की गैरत नहीं जागी। हज 2.5 लाख से 8 लाख का हो गया लेकिन इमरान खान की गैरत नहीं जागी। सीमेंट की बोरी 450 से 950 की होगी, इमरान खान की गैरत नहीं जागी। सरिया फी टन 80,000 से 2 लाख का हो गया लेकिन इमरान खान की गैरत नहीं जागी। ईंट फी 9,000 से 15,000 की हो गई, इमरान खान की गैरत नहीं जागी। मुतनाज़े कश्मीर हिंदुस्तान हड़प कर गया, इमरान खान की गैरत नहीं जागी। DAP खाद 3500 से 7,000 की हो गई, इमरान खान की गैरत सोती रही। दवाई 100 रुपए वाली 330 की हो गई, इमरान खान की गैरत जो है वो ख्वाब गफलत का शिकार रही। बिजली का यूनिट 8 से 21 रुपए का हो गया, इमरान खान की गैरत नहीं जागी। गैस का बिल 300 वाला 2,000 रुपए का हो गया लेकिन इमरान खान की गैरत नहीं जागी।
गाड़ी 7 लाख वाली 14 लाख की होगी, इमरान खान की गैरत नहीं जागी। मोटरसाइकिल 95,000 वाली 1.5 लाख की होगी, इमरान खान की गैरत नहीं जागी। करप्शन इंडेक्स है पाकिस्तान 117 से 140 पर पहुंच गया, गैरत फिर भी सोती रही। जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से गिर के तकरीबन निस्फ रह गया 0.5%, लेकिन इमरान खान की गैरत को मजाल है किसी ने जगाने की कोशिश की हो। जीडीपी में कर्जों का तनासुब 70% से 87% हो गया, इमरान खान की गैरत वहीं रही। सहाफ़ती आज़ादी में पाकिस्तान 138 से 145 से पहुंच गया, लेकिन इमरान खान की गैरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फी कस सालाना आमदनी $1465 से $1164 हो गई, लेकिन इमरान खान की गैरत नहीं जागी। तजारती खसारा 300 अरब रुपए से 800 अरब हो गया, लेकिन गैरत को कुछ नहीं हुआ। तालीम याफ्ता तबके में बेरोजगारी 3% से 16% हो गई, लेकिन इमरान खान की गैरत नहीं जागी। हुकूमत जाते ही उनकी गैरत जाग गई, लेकिन उनकी हुकूमत जाने के बाद जो तबाही छोड़ गई है वो पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रही है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बदतरीन गिरावट का सिलसिला जारी है। अमेरिकन करेंसी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी बड़ी ड्रॉप्स देखने में आ रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अदाद व शुमार के मुताबिक रवां हफ्ते के पहले कारोबारी रोज के दौरान इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में ₹1.65 का इजाफा देखने आया। अदाद व शुमार के मुताबिक इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले में अमेरिकन डॉलर की कीमत ₹192.53 से बढ़ के ₹194.18 हो गई है। और गुज़िश्ता माह 11 अप्रैल को मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मखलूक हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था, तो रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत 182.3 थी। तब से रुपया ₹11.40 अपनी कदर खो चुका है। डॉलर महंगा होने से कर्जों के बोझ में 1500 अरब रुपए का इजाफा हुआ, और रुपए की कदर में कमी की वजह दरामदी बिलों में बेकाबू और होश रुपए इजाफा है। और ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इमरान खान भी रोज़ खिताब कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे। तो 4 साल उन्होंने क्या किया इस मुल्क में, उसके मुतालिक जिक्र नहीं कर रहे, अपनी कारकर्दगी पे नहीं कर रहे। और शीरी मज़ारी जो हैं वो भी अपनी कारकर्दगी पे जिक्र नहीं कर रही, वो कर रही हैं तो लड़ाई कर रही हैं, फ़ौज को बदनाम करने की कोशिशें कर रही हैं। ये वही लोग हैं जो फ़ौज की ही वजह से यहाँ उनकी मरहून मिन्नत है, और उन्हीं की वजह से ये फ़ायदे उठाते रहे यहाँ तक पहुँच के। और अब वो जिस थाली में खाया था उसी थाली में छेद करने के दर पे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को अपनी अमान में रखे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।